नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। हिंदुस्तान और कनाडा के माबैन बाहमी ताल्लुकात को बेहतरीन दर्जे पर ले जाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की कैनेडियन हममनसब से मुलाकातों में यकीन दहानी। अफगानिस्तान में ख़वातीन के साथ कोई भेदभाव नहीं, वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की वजाहत। कहा, इस्लामी क़वानीन के मुताबिक हासिल है पूरी आज़ादी। बिहार के लिए एनडीए ने सीटों की तकसीम का किया ऐलान। बीजेपी और नीतीश कुमार 101 सीटों पर करेंगे मुकाबला। चिराग पासवान को 29, कुशवाहा और राम मांझी को 6-6 सीटें दी गई। और बिहार इलेक्शन से पहले लालू फैमिली को झटका। IRCTC केस में अदालत ने तय किए इल्जामात, चलेगा मुकदमा। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान और कनाडा के माबैन खालिस्तान के मसले पर शदीद तरीन तल्खियों के बीच कनाडा की नई वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद हिंदुस्तान पहुंची। अनीता आनंद के साथ नई दिल्ली में आज वफूद सतह की एक अहम मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यकीन दहानी कराई है कि हिंदुस्तान और कनाडा के माबैन बाहमी ताल्लुकात बेहतरीन दर्जे तक ले जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म का हवाला देते हुए कहा कि हम मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें यकीन है कि हम एक बार फिर बेहतरीन दोस्त बन जाएंगे। In Kananaskis, India's approach is to move forward with a positive mindset. This morning, you have met the Prime Minister. You have heard from him personally about our vision of cooperation and how best to realize it. I should also take note of the fact that our national security advisors and their teams had a productive meeting on the 18th of September in New Delhi, which was an important first step towards enhancing our security cooperation. Our foreign ministries at the level of secretary or deputy minister also met on the 19th of September to review the overall relationship. Our trade ministers spoke recently, actually on the 11th of October. So when we look at Canada, we see a complementary economy, we see another open society, we see diversity and pluralism, and we believe that that is the basis for a close, sustainable, and long-term cooperative framework. Minister, let me also say that both sides, for our meeting today, have prepared an ambitious roadmap to advance our cooperation in various domains, including trade, investment, agriculture, science and technology, civil nuclear collaboration, AI, critical minerals, and energy. I'm glad that the two High Commissioners have assumed their responsibilities in our respective capitals and are part of today's meeting. This is our High Commissioner with whom you have spoken. Our responsibility as foreign ministers is to shepherd the process of rebuilding that we've received this morning. We are so grateful to be able to further the Canada-India relationship with you here in New Delhi today. I want to first and foremost extend my appreciation to you for the conversation that you and I have had since I was appointed as Canada's Minister of Foreign Affairs on May 13th. Equally, Prime Minister Carney was pleased to welcome Prime Minister Modi to the G7 summit in Kananaskis, where they had a productive bilateral engagement, which very much informs the conversation that we are having here today. I want to suggest that the cooperation that we have seen from your side, and certainly very welcome. And today we'll be discussing the India-Canada joint statement, which is comprehensive and covers a number of issues that will allow us to continue the work to elevate the bilateral relationship.
I appreciate the words you spoke relating to the security dialogue, which, while we elevate the relationship in areas of critical minerals, energy, AI, and climate, to name a few, will continue. The meeting that our officials had relating to हिंदुस्तान के दौरे पर आए अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि जुमे को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को जानबूझकर नहीं निकाला गया था। अमीर खान मुत्तकी ने इतवार को नई दिल्ली में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जुमे को उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी खातून सहाफ़ी को शरीक नहीं किया गया था। कई खवातीन सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उन्हें मदऊ नहीं किया गया था, जिस पर अफगान तालिबान के साथ साथ हिंदुस्तानी हुकूमत को भी तनकीद का सामना करना पड़ा। ताहम हिंदुस्तानी वजारत खारजा का कहना है कि अफगान सिफारत खाने में मुनाकिद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई अमल दखल नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्तकी से सवाल किया गया कि आप दारुल उलूम देवबंद गए और ईरान, शाम और सऊदी अरब में ख़वातीन और लड़कियों को तालीम हासिल करने से नहीं रोका जाता। उन्होंने स्कूल और कॉलेज जाने से नहीं रोका जाता। आप अफ़गानिस्तान में ऐसा क्यों कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को तालीम का हक़ कब मिलेगा? देवबंद सरम ताल्लुक देर ज़्यादा अफ़गानिस्तान की तुर्कुम हद तालीम मसला दा मुगवस हम 10 मिलियन शागिर्दान हो बदे 10 मिलियन शागिर्दानों की 2.8 मिलियन जुनी दी और दीनी मदारिसों के हम दरसुना तर इंतहा पूरी दवाम ले अलता जिनो मखसूस शोबों की महदूदियतों नस्ता वलिदे माना दाना दा चिमुग इल्म और तालीम खिलाफ अफगानिस्तान की दिखजो तालीम हराम न दबल सवै बल्कि तर अब सादी पूरी जिन शोबे मातलसवी। There is no doubt that Afghanistan has relations with ulama and madaris across the world, and with Deoband perhaps greater than others. With regards to education, currently at this very moment we have 10 million students attending schools and other education institutes, of which 2.8 million are women and girls. In religious seminary, these education opportunities are all the way to the graduation levels, to highest levels. There is only limitations in specific parts, and that does not mean that we oppose education. We have not declared it religiously haram, but it has been postponed until second order. और तेरो चलोरो लसीजों की अफगानिस्तान की शदीद जंगों तीर सवीदी दोबार अफगानिस्तान शगाल सवेदा और आज़ाद सवेदा वदी की डेर खबर निगारान और डेर कलम बदस्तान वो ज्वाल अल्लाह सवर करेदा और डेर अफगानान शहीदान सवीदी पमिलियनों अफगानान शहीदान सवीदी दाय वडेरा तरखा दौरत ये रसवेदा और सुमरतावान में सिर सीधे मुकुटोलो बांधे अफसोस कहूँ वाले खुशाल हूँ चिकला सलोर काला मख्ता निमुगवा कमने रागले इस्लामी इमारत हाकिम सवाई नब्या पचलोर काला की नुकुम खबरियाल वज़ल सवाई और न कुम नूर लोई वाक़ात की सीधी और दगा अमन वालुची अफगानिस्तान की दायमन बरकरार है। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के हवाले से अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि तालीम के लिहाज से इस वक्त हमारे स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों में 1 करोड़ तालिबात ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से 28 लाख ख़वातीन और लड़कियां हैं। ये तालीम दीनी मदारिस में ग्रेजुएट सतह तक दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में बाज़ पाबंदियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम तालीम की मुखालिफत करते हैं। हमने तालीम को मजहबी तौर पर हराम करार नहीं दिया है, लेकिन इसे अगले अहकामात तक मुलतवी कर दिया गया है। बाहर से आया हुआ लोग तिजारत के लिए हो या अपना लोग
ये सब वहाँ पे नाफिज़ा क़वानीन के तहत अपने हुकूक से बरखुरदार है और किसी का हक भी ज़ाया नहीं हो सकता है। सबका सब कर सकता है कि अगर कोई मुश्किल पेश आए वो महकमों को जा सकता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और जो साबिका 40 सालों में अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है, जुल्म और ज़्यादती हुआ है, तो 4 साल पहले जब हमारा फतूहात शुरू हुआ तो हमारे तरफ से, हमारे क़यादत की तरफ से सारे जितना भी मुखालिफिन थे, जितना जुल्म किया था, वो सब के लिए उमूमी माफ़ी ऐलान हुआ। फिर ऐसे लोग भी उसमें शामिल था जिन्होंने हमारे साथियों को शहादत के बाद उसके लाशों पे, उसके अजसाद पे आग लगाया। वो भी अफगानिस्तान में अभी आज़ाद ज़िंदगी कर रहा है। और साबिक जो सदर थे या और बड़े बड़े ओहदों वाले लोग थे, वो अभी काबुल में हैं, वो सब आज़ाद ज़िंदगी कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अभी ये चाहता है कि इख्तिलाफ से महफूज और सब लोग वहाँ पे ये एहसास करें कि हमारा वतन है और हम इधर ज़िंदगी कर सकता है। क्यों? खून से सफा नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारे लोग, जितना अफगानिस्तान के अवाम है, जितना साबिक हुकूमतों में काम किया था, जो लोग हमारे साथ लड़ाई में मध्य मुकाबिल में खड़ा था, जो और लोगों के साथ दिया था, तो हम सब के लिए माफ़ी ऐलान किया। अभी वही माफ़ी की बरकत है जो अफगानिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की करता है, तुजार भी है और हमारा तालीम याफ्ता तबका भी है और साबिक हुकूमत के आइंदा माह 2 मरहलों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए एनडीए में सीटों की तकसीम का ऐलान हो गया है। इस बार बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर इंतखाबात लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा इत्तेहाद में शामिल जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। बिहार में सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल देने से कबल नई दिल्ली में बीजेपी की मरकजी क़यादत का एक अहम अजलास मुनाकिद किया गया। इसी के बाद ये फैसला लिया गया है। सीटों की तकसीम के इस फैसले पर जितिन राम मांझी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 सीटें मांगी थी, मगर उन्हें सिर्फ 6 सीटें दी गई हैं और इस फैसले से उन्हें दुख हुआ है। ताहम उनका कहना था कि वो इस फैसले को लेकर आगे बढ़ेंगे और एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। उसमें वो जीना सीखा है और हमारे साथ इसका उदाहरण भी है। एक जातीय संस्कार है और दूसरा लोकसभा का चुनाव भी सामने है कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो ज़रूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसकी खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है। तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है। हम हर तरह से साथ हैं, निर्णय को हम सर्वधार्य किया है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि एनडीए से कमज़ोर होगी अगर मुझे कम सीटें मिलेगी तो। कमज़ोर होगी ना होगी, एनडीए के लोग समझें। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे आरोप सिद्ध हो गया। वो न्यायालय का मामला है, हमको नहीं मालूम था। आप लोग कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध हुआ है और न्याय अपना काम करेगा। एनडीए कितना मजबूत है इस बिहार इलेक्शन में? ये हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के
जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का, और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है। और इलेक्शन कमीशन ने बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के 122 नशिस्तों और 7 दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों की 8 नशिस्तों के लिए पीर को एलामिया जारी कर दिया। पंजाब में तरन तारण, राजस्थान में अंता, उड़ीसा में नवापाड़ा, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, मिजोरम में डिम्पा और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में नागरोटा और बुडगाम की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी अलहदा एलामिया जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही बिहार में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबात और दीगर रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल भी आज से शुरू हो जाएगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान नौकरी के लिए ज़मीन मामले में आरजेडी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव समेत तमाम मुलजिमान के खिलाफ इल्ज़ामात तय कर दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब इन लीडरों पर इस मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। आरजेडी रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना जुर्म मानते हैं, तो लालू यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपना जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि ये केस बिल्कुल गलत है। उड़ीसा स्टेट वीमेन कमीशन की चेयरमैन ने 3 रुकनी वफ्द के साथ दुर्गापुर जाने का फैसला किया है, जहां वो इज्तिमाई रेप का शिकार हुई तालिबा से मुलाकात करेंगी और उनके इलाज व तहकीकात के मामले का जायज़ा लेंगी। उन्होंने इस मौके पर ममता बनर्जी के इस बयान को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें ममता ने कहा था कि लड़कियों को रात के औकात में घर से निकलने से गुरेज करना चाहिए। मेरा का डीएसपी मैडम है, वो मैं जा रही हूँ। उनको फादर को मिलेंगे, फादर मदर को मिलने के लिए भी मैं जा रही हूँ। उनके प्रशासनिक क्षेत्र में डीजी के साथ में मिलने के लिए प्रपोज करूँगा कि सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं, विक्टिम को तबीयत कैसा है, और 3 लोग अरेस्ट हुआ, उनको किस ढंग से उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेने के लिए चल रही कि नहीं, वो और एक दुर्बुत अरेस्ट नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इनके लिए पूछताछ करके फिर विक्टिम को मिलेंगे। विक्टिम को मिलेंगे। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि रात में निकलने का ठीक वो नहीं को है। बोलने देने छोड़ दीजिए, वो तो बोलेगी। वो ममता नहीं है उसके पास दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, इसे बोलेंगे, उसको बोलने दीजिए। हम ऐसे काम नहीं करूँगे, हम पीड़िता के साथ बातचीत करूँगा, पीड़िता के साथ काउंसलिंग करेंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। ममता बनर्जी बोले रात में लड़की लोग घूमने नहीं जाना चाहिए, स्टूडेंट लोग। ये ठीक बात नहीं है। महिला चंद्राणी रसी छाल से चंद्राणी जाती हो, ये बोल रहे थे कि महिला रात के घूमने नहीं जाती। ये ठीक बात नहीं है। आश्वासन देना चाहिए महिला के लिए। गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो आप सेटिस्फाई है? नहीं, ये तो लॉ एंड सिचुएशन ठीक नहीं है। अगले बार आप लोग सब कुछ जानते हैं, वो पीड़िता के साथ कैसा हुआ था डॉक्टर छात्र के साथ। उड़ीसा सीएम भी बात किए हैं विक्टिम के साथ। उड़ीसा सीएम विक्टिम के साथ बात। मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल की तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी के बाद ख़वातीन तालिबात को रात गए बाहर जाने से गुरेज करने के इनके मशवरों पर बढ़ती हुई तनकीद के दरमियान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इतवार को इल्ज़ाम लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ममता ने अलीपुर द्वार में सहाफ़ियों को बताया कि इस मामले पर उनके तबसरों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनके अल्फाज की गलत तशरीह की गई। वज़ीर आला ने कहा कि डमडम एयरपोर्ट पर मेरे तबसरों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आप मुझसे एक सवाल पूछें और जब मैं जवाब देती हूँ तो मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। मेरे साथ इतनी सस्ती सियासत ना करो। उन्होंने कहा, दूसरों के बरक्स मुझ में आपसे मिलने और बराह रास्त बात करने की शाइस्तगी है।
दूसरे सिर्फ पहले से तरतीब दिए गए सवालात का जवाब देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी पीर को तमिलनाडु के करूर में भगदड़ की तहकीकात सीबीआई से कराने का हुक्म दिया। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह हुक्म जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अजय रस्तोगी को तहकीकात की निगरानी के लिए कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया। अदालत उज़्मा ने भगदड़ की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम SIT की तश्कील के मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत के बाद 10 अक्टूबर को फैसला महफूज कर लिया था। याद रहे कि अदाकार से सियासतदान बनने वाले अदाकार विजय की 27 अक्टूबर को मुनाकिदा रैली में भगदड़ से 41 लोगों की जान गई थी और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। मुंबई में दिवाली की पार्टियों का सिलसिला शुरू हो गया है। दिवाली की पार्टियों की बॉलीवुड में खासी धूम हुआ करती है। इस सिलसिले में बॉलीवुड के मशहूर डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने पार्टी का एहतमाम किया था, जिसमें बॉलीवुड की हसीनाएं अपने जलवे बिखेरती नजर आईं। काजोल, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, रेखा और सारा अली खान इस पार्टी में सबकी तवज्जो का मरकज रही। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिंदुस्तान और कनाडा के माबैन बाहमी ताल्लुकात को बेहतरीन दर्जे पर ले जाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की कैनेडियन हममनसब से मुलाकातों में यकीन दहानी। अफगानिस्तान में ख़वातीन के साथ कोई भेदभाव नहीं, वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की वजाहत। कहा, इस्लामी क़वानीन के मुताबिक हासिल है पूरी आज़ादी। बिहार के लिए NDA ने सीटों की तकसीम का किया ऐलान। बीजेपी और नीतीश कुमार 101 सीटों पर करेंगे मुकाबला। चिराग पासवान को 29, कुशवाहा और राम मांझी को 6-6 सीटें दी गई। और बिहार इलेक्शन से पहले लालू फैमिली को झटका। IRCTC केस में अदालत ने तय किए इल्जामात, चलेगा मुकदमा। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।